بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کو ایف آئی اے نے شوگر کے بارے میں تحقیقات کرنے کے لیے کیا بلا لیا کہ پوری مافیا نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ تمام سیاسی جماعتیں جہانگیر ترین کے پیچھے کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے جہانگیر ترین کے لیے ہر کچھ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شوگر مافیا ملک کی طاقتور ترین مافیا ہے۔ ویسے تو ملک میں اس وقت مافیاؤں کا راج ہے، ہر ایک مافیا موجود ہے، لیکن شوگر مافیا جو ہے ان میں ملک کی سب سے طاقتور ترین شوگر مافیا ہے، اور تمام بڑی جماعتیں اس شوگر مافیا کی پشت کے اوپر ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بڑی جماعتوں کے جتنے بھی چیئرمینز ہیں، صدور ہیں یا بانی ہیں، ان سب کی ایک دو نہیں 20 شوگر ملیں ہیں، وہ خود شوگر ملوں کے مالکان ہیں، اس لیے ان کو جہانگیر ترین کو سپورٹ کرنا لازمی ہے۔ برسوں سے یہ عوام کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بلکہ کتوں کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں سے لوٹ رہے ہیں اور بے پناہ مال کما رہے ہیں۔ یہ 2-3 ماہ میں اربوں روپے کما لیتے ہیں، ہر طرف سے مال کھینچتے ہیں۔ یہ ایک جگہ سے نہیں، صرف شوگر سے مال نہیں کماتے، یہ 3 جگہ سے مال کماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو شوگر تیار کر کے سٹے بازوں کے ذریعے اس سے مال کماتے ہیں، پھر حکومت ان کو سبسڈی دیتی ہے، اس سے مال کماتے ہیں، اور پھر جو گنے کا پھوک نکلتا ہے اس سے بجلی پیدا کر کے یہ اس سے بھی مال کماتے ہیں۔ یعنی یہ اربوں خربوں روپے سالانہ کماتے ہیں۔ انہوں نے منافع کمانے کی حد ہی پار کر دی ہے۔ شوگر کے اندر اس قدر منافع ہے، اتنا مال ہے کہ اس کا ان کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہے۔ بس مال کمائے جاؤ، مال کمائے جاؤ، مال کمائے جاؤ، نقصان کسی بھی قسم کا نہیں ہے۔ ان پہ اس قدر دولت ہے، اتنا مال کماتے ہیں یہ کہ ان کو بندوں کو خرید کے حکومتیں بنواتے ہیں، حکومتیں گراتے ہیں، حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں، حکومتوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، کنگ میکر بنے ہوئے ہیں کہ ان کی وجہ سے حکومتیں بنتی ہیں اور یہ چاہے تو حکومتیں گرا دیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ہر چھوٹا بڑا پاکستانی قوانین کو جوتے کی نوک پہ مارتا ہے، اور اس کے اندر اشرافیہ اور یہ شوگر مالکان، شوگر ملز مالکان تو بے مثال ہیں۔ یہ تو کسی قانون قاعدے کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ قانون کو اہمیت ہی نہیں دیتے، یہ قانون سے بالاتر چیزیں ہیں، اور اگر ان پہ قانون ہاتھ رکھے تو پھر یہ اس قدر شور کرتے ہیں، اتنا ادھم مچاتے ہیں، حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں کہ حکومت ڈر کے مارے پھر ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتی ہے۔ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھی اپنا حکم چلاتے ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ان کی مرضی کے مطابق ہی چلتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق ہی ایف آئی آر کٹتی ہیں، ان کی مرضی کے مطابق ہی کیس بنتے ہیں، جو اس قدر کمزور ہوتے ہیں کہ عدالت میں جاتے ہی یا تو ان کو ضمانت مل جاتی ہے یا یہ بری ہو جاتے ہیں الزامات سے۔ ملکی اشرافیہ کے رنگ ڈھنگ دیکھ کے عوام بھلا کیوں پیچھے رہتی؟ عوام بھی ملکی قوانین کو اپنے حساب سے جوتے کی نوک پہ مارتی ہے، عوام بھی قوانین کا کوئی احترام نہیں کرتی، بلکہ وہ تو کہتی ہے قوانین بنائی اس لیے جاتے ہیں کہ انہیں توڑا جائے۔ عوام ہر 2 نمبر کام کھلے دل سے کرتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی جیب میں ہوتے ہیں، پولیس اور تھانہ بھی ان کی جیب میں ہوتا ہے، وہ ان کو معلوم ہے کہ اگر پکڑے جائیں گے تو رشوت دے کے چھوٹ جائیں گے، اس لیے وہ 2 نمبر کام کھلے دل سے کرتے ہیں، کھل کھلا کے کرتے ہیں۔ تمام بڑے ٹی وی چینلز ان تمام چیزوں کو بے نقاب کرتے ہیں جو معاشرے میں ہیں اور غلط ہو رہی ہیں، وہ ہر چیز دکھاتے ہیں۔ جعلی مسالے بنانے والی فیکٹریاں دکھاتے ہیں، جعلی گھی بنانے والی فیکٹریاں دکھاتے ہیں، جعلی تیل بنانے والی فیکٹریاں دکھاتے ہیں، مردہ جانوروں کی ہڈیوں سے نکلنے والا گھی بنانے والی مافیاز کو دکھاتے ہیں، کتے گدھے کا گوشت بیچنے والوں کو دکھاتے ہیں، مردہ جانوروں کا گوشت بیچنے والوں کو دکھاتے ہیں، جعلی مشروبات بنانے والوں کو دکھاتے ہیں، لیکن ان کا ہوتا کیا ہے؟ اس وقت موقع پہ موجود ڈپٹی کمشنر اس فیکٹری کو سیل کر دیتے ہیں، اور کچھ دن کے بعد وہ فیکٹری پھر اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ بھتہ دینے کے لیے الگ ہی رقم رکھی ہوئی ہوتی ہے، پہلے ہی مخصوص رقم رکھ دیتے ہیں کہ اگر ہم پکڑے گئے یا ہماری فیکٹری پہ چھاپا پڑا تو یہ رقم اس کو بحال کرانے میں کام آئے گی۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ قانون اس لیے نہیں بنتا کہ اسے نافذ کیا جائے، بلکہ قانون بنتے ہیں رشوت کا ریٹ بڑھانے کے لیے۔ جو کام پہلے 5,000 روپے میں ہوتا ہے وہ قانون نیا بننے کے بعد 10,000 روپے میں ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ یہاں پہ 2 نمبر مافیاز کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سب آرام سے پوری پاکستان میں اپنے کام کر رہے ہیں، اور جن جن کو انہیں بھتہ دینا ہے، جن جن کے انہوں نے ماہانہ باندھے ہوئے ہیں، رشوت دینی ہے، ان سب کے بھتے پہنچ رہے ہیں، رشوت پہنچ رہی ہے، ماہانہ پہنچ رہے ہیں، اور وہ کھلے عام 2 نمبر کام کر رہے ہیں۔
शुगर माफिया पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन माफिया है। 60 साल से इन पे किसी ने हाथ नहीं डाला। ये अपनी मर्ज़ी से चीनी के रेट बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से चीनी बेचते हैं और अपनी मर्ज़ी से माल कमाते हैं। इनके ना कोई ये पूछने वाला है कि चीनी पे कितनी लागत आती है 1 किलो चीनी बनने पे और उसको किस हिसाब से बेचा जाता है। ना ये इनसे पूछा जाता है कि चीनी इतनी बन गई है और ये बाहर उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हुकूमत से सब्सिडी मांगते हैं कि हमें चीनी बहुत ज़्यादा बन गई है, उसको एक्सपोर्ट करना है तो हमें सब्सिडी दी जाए। माल कमा रहे हैं, दोनों हाथों से माल कमा रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। शुगर माफिया का एक डॉन है जहांगीर तरीन। इसे आप डॉन कह सकते हैं। ये माफिया को इस वक्त लीड कर रहा है। पूरी शुगर माफिया इसके पीछे और ये डॉन आगे है, सबसे आगे। पीटीआई की हुकूमत की 2018 में हुकूमत बनाने में इसका किरदार बहुत ज़्यादा रहा था। ये मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवारों को और मुख्तलिफ अपने हम ख्याल लोगों को लेके पीटीआई में आया और पीटीआई की हुकूमत इसने पंजाब में विफाक में बनवाई। वज़ीर आज़म इमरान खान इसी की कोशिशों से वज़ीर आज़म बने। इसलिए इसको ये घमंड था कि मैंने अब अपने लिए रास्ता साफ़ कर लिया है और मुझ पर अब कोई हाथ नहीं डाल सकता। पिछले साल इसके ऊपर कुछ शुगर का केसेस चले तो ये मुल्क से बाहर चला गया, जिस पर अपोजिशन ने बहुत शोर मचाया कि इमरान खान ने अपनी एटीएम मशीन को बाहर फ़रार करा दिया है, एटीएम को बाहर निकाल दिया है, जहांगीर तरीन को भगा दिया, उसका एहतसाब नहीं किया, अपने दोस्त को बचा लिया है। और अब जब जहांगीर तरीन वापस आया है और एफआईए ने इसको और इसके बेटे को पकड़ा है, तो अब अपोजिशन इसके हक़ में नारे लगा रही है कि जहांगीर तरीन के साथ ज़्यादती हो रही है, इमरान खान को दोस्तियाँ निभानी नहीं आती हैं। जहांगीर तरीन के बारे में सुनने में आ रहा है कभी पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोगों को भी 10-10, 20-20 शुगर मिले। कभी सुनने में आ रहा है कि नून लीग वाले उसको अपने अंदर शामिल करना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी भी बेशुमार शुगर मिले। यानी अपोजिशन जब ये चला गया था, जब शोर मचा रही थी कि इसको भगा दिया, अब ये आ गया और एफआईए ने इस पर हाथ डाला, तो अब अपोजिशन इसके हक़ में शोर मचा रही है कि इसके साथ ज़्यादती हो रही है और हम इसके साथ खड़े हुए हैं। कोई कह रहा है कि जहांगीर तरीन मासूम है, इसकी तो दाईं जेब में पंजाब हुकूमत है और बाईं जेब में वफाक की हुकूमत है। ये जब जी चाहेगा वफाकी और पंजाब की हुकूमत को ख़त्म कर देगा। इसके साथ 21 मेंबरान हैं तो इसके पास 22 मेंबरान हैं। मुख्तलिफ दावे हो रहे हैं और जहांगीर तरीन भी पकड़ में आने के बाद, एफआईए में आने के बाद हुकूमत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कभी अरकान असम्बली को बुला के उनको नाश्ते करा रहा है, कभी अशाइया दे रहा है, हुकूमत को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि इतने बंदे मेरे साथ हैं, अगर तुमने मेरे पे हाथ हल्का नहीं किया तो मैं इन सब को तुम्हारे ख़िलाफ़ कर दूंगा। कभी सुनने में आ रहा है कि वो पीपल्स पार्टी से कह रहा है कि तुम अदम एतमाद की तहरीक ले आओ, इतने बंदे मेरे साथ हैं, ये तुम्हारा साथ देंगे और इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। जहांगीर तरीन अपने और अपने बेटे के बचाव के लिए हर तरह की ब्लैकमेलिंग कर रहा है, हर तरह का हुकूमत पर दबाव डाल रहा है। कभी कह रहा है 10 तारीख को जाऊंगा तो मेरे साथ 21 से लेकर 25 अरकान असम्बली होंगे जो मेरे साथ जत्थे की शक्ल में जाएंगे, जुलूस की शक्ल में जाएंगे, इसकी गाड़ियों में फूल बरसाएंगे। वही जैसे कि मरियम के साथ या जरदारी के साथ, बिलावल के साथ होता है कि पूरे पूरे जुलूस लेकर अदालत में जाते हैं और किराए के लोग इनकी गाड़ियों में फूल बरसाते हैं, विक्ट्री का निशान बनाते हुए अंदर जाते हैं और एक लंबी तारीख लेके विक्ट्री का निशान बनाते हुए वापस अपने घरों में चले जाते हैं। सभी जहांगीर तरीन के इस वक्त तमाम सियासी पार्टियां उसके पीछे खड़ी हैं और उसके कह रही हैं कदम बढ़ाओ जहांगीर तरीन, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी है कि अभी जहांगीर तरीन पे हाथ पड़ा है, कल को पीपल्स पार्टी के लोगों को भी हाथ पड़ेगा जिनकी शुगर मिलें और नून लीग के भी लोगों के ऊपर हाथ पड़ेगा। वैसे तो उनके शुगर मिल्स पे मुकदमात चल ही रहे हैं, इसलिए सबको अपनी अपनी पड़ी है। सब ने जहांगीर तरीन को आगे कर दिया है कि ये जो कुछ कर सकता है करेगा, यही हमें बचा सकता है, यही इमरान खान की हुकूमत गिरा सकता है, यही इमरान खान को इस सीट से डिफ्यूज़ कर सकता है ताकि हम सब की इस मुसीबत से जान छूटे जो इमरान खान ने उनके लिए खड़ी की है। इमरान खान को हम एक अरसे से जानते हैं। खान साहब किसी से डरने वाले नहीं हैं, किसी से दबने वाले नहीं हैं। वो अपनी मर्ज़ी के करते हैं और अपनी मर्ज़ी ही चलाते हैं। अगर उनको डराने की या धमकाने की कोशिश की जाती है तो वो उस खेल को ही ख़त्म कर देते हैं, उस बात ही को ख़त्म कर देते हैं जिसमें उनको ये एहसास हो कि मुझे डराया जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है या मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो किसी के दबाव में कभी भी नहीं आते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि जो सही बात है मैं उसी के साथ रहूं। इसलिए खान साहब को दबाने की या डराने की या ब्लैकमेल करने की इनकी कोशिशें नाकामी होंगी। वो जब देखेंगे कि मुझे इसमें कामयाबी नहीं हो रही है तो वो खुद ही कोई बहुत बड़ा फ़ैसला करके इन सब को ठिकाने लगा देंगे। खेल अब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। एक तरफ जहांगीर तरीन और उसके पीछे बड़ी सियासी पार्टियां हैं और दूसरी तरफ इमरान खान है और उनकी काबीना में भी बहुत सारे जहांगीर तरीन ही के लोग बैठे हुए हैं जो जहांगीर तरीन को सपोर्ट करते हैं। दर पर्दा वो उसी के बंदे हैं और उसी को सारी बातें रिपोर्ट करते हैं। इसलिए इमरान खान इस वक्त अकेले ही इस सबसे बड़ी
मुल्क की ताकतवर माफिया का अकेले ही मुकाबला कर रहे हैं। हम खान साहब से कहेंगे कि आप लगे रहिए, आप पहले शख्स हैं जो इस माफिया का इतनी दिलेरी से मुकाबला कर रहे हैं। इस शुगर माफिया को उसके कैफिर किरदार तक पहुँचा के दम लें। अवाम आपके साथ है, इंशाअल्लाह ताला अवाम आपके पीछे खड़ी है। जब अवाम आपके पीछे खड़ी तो आपको इन माफिया से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई डॉन आएंगे और इंशाअल्लाह वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे। हमारी अवाम से भी गुजारिश है, बल्कि एक पैगाम हमारे पास आया है कि आप 15 ख़ानदानों के बजाय 3 महीने चीनी का बाइकाट करके 15 ख़ानदानों को सपोर्ट करने के बजाय गुड़ खाएं, ताकि 50 लाख किसानों को फ़ायदा पहुँचे। अगर 3 महीने के लिए आप चीनी का बाइकाट कर दें और उसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, जो कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, और चीनी तो मुज़र सेहत है, उससे शुगर भी बढ़ने के चांसेस होते हैं, इससे बहुत सारी बीमारियां भी पैदा होती हैं। अगर आप 3 महीने के लिए चीनी का बाइकाट कर दें और उसकी जगह गुड़ या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला ये शुगर माफिया घुटनों पे आ जाएगा, इनकी बोरियां, इनकी चीनी सब पड़ी रह जाएगी। जहांगीर तरीन जो शुगर माफिया का डॉन है, इसके पास इस कदर पैसे हैं कि ये अपना साथ देने वाले बंदों को सोने में तोल सकता है, और इमरान खान के पास कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ अवाम की ताकत है। अब अवामी को इमरान खान को सपोर्ट करना है और अवामी को इमरान खान के पीछे खड़ा होना है इस माफिया के ख़िलाफ़। देखते हैं कि जीत किसकी होती है, इमरान खान की होती है या इस शुगर माफिया की, जो अपने नापाक इरादों में आगे बढ़ रही है, नापाक इरादे लेकर। मज़े की बात यह है कि इतनी सारी फ़ौजी हुकूमतें आईं, उन्होंने भी कभी शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए कि बहुत से रिटायर्ड फ़ौजियों की भी शुगर मिले हैं या उनके बहुत ही करीबी अज़ीज़ रिश्तेदारों की शुगर मिले हैं। इसलिए फ़ौजी जब हुकूमतें आती हैं तो वो भी इनको खुली छूट दे देती हैं, इनको इनकी मनमानी करने देती हैं। कभी किसी ने इस ताकतवर माफिया पे हाथ नहीं डाला। ये इमरान खान पहले वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के जिन्होंने इस ताकतवर माफिया पे हाथ डाला है, वो संजीदगी से इसके पीछे लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला वो इसको इसके अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। हमारी एक बार फिर अवाम से अपील है कि वो इमरान खान का इस शुगर माफिया के ख़िलाफ़ साथ दें और उनकी ताकत बन के खड़े हों, क्योंकि इन शुगर माफिया के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ये तो पूरे पाकिस्तान के बंदे ख़रीद सकते हैं और मुल्क में एक अफरा तफरी मचवा सकते हैं। इसलिए अवाम को चाहिए कि इसका इमरान खान का साथ दें और 3 माह के लिए चीनी का बाइकआउट कर दें। इंशाअल्लाह ये अपने घुटनों पे आ जाएंगे। हमारी बातें अच्छी लगें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट्स ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो करें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।